Hello students, I Pallav Darbari welcome you all in my YouTube channel Pallav Darbari Classes. In this channel we will discuss macroeconomics class 12th. The name of the chapter is National Income Accounting. This is my 13th video on the National Income Accounting. In this video I will discuss with you income method. We will solve the numerical together by applying the income method. In the previous video we have seen how we can solve the national income by applying the value added method. In the next video we will do the same thing. We will solve the national income by applying the expenditure method. So in this video what we will do, we will solve the national income by applying income method. Listen, if we have to solve the national income by applying the income method, we have to apply two steps. Let us see. How we can solve it. Calculation of national income. National income means NNPFC. If we have to solve the national income by applying the income method, let us see the step that we have to follow. We have to follow two steps. Firstly, we have to follow and we have to solve, or we have to find out domestic income and DPFC. The question is how we can calculate the domestic income. We can calculate the domestic income by the summation of compensation of employees, plus operating surplus, plus mixed income of self-employed. By the summation of these three items, we will get domestic income. The second step that we have to do is we have to find out NFIA. The question is how to find out NFIA. NFIA is the difference between FIFA and FITA. FIFA means factor income from abroad and FITA means factor income to abroad. Once we know the value of the NFIA, then what we have to do is we have to add the NFIA in the domestic income. By adding NFIA in the domestic income, we will get the national income, NNPFC. So in the case of the income method, we can calculate the national income by adding NFIA in the domestic income. The very first thing that we have to do is we have to find out the value of the domestic income. Then we have to find out the value of NFIA. Then we have to add NFIA in the domestic income. We will get national income. Clear हो गया? Let us solve the question. In this question what we have to do, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं करना क्या है. आप देख सकते हो हमें नेशनल इनकम निकालना है, इनकम मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है. एक्सपेंडिचर मेथड अभी हम लोगों ने नहीं किया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड लगा के. नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एनएनपीएफसी फाइंड आउट करेंगे. कौन सा मेथड लगा के फाइंड आउट करेंगे, इनकम मेथड. एक्सपेंडिचर नहीं लगा सकते क्योंकि अभी हमने किया ही नहीं है. सबसे पहला काम, आप एक काम करिए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए. चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इनकम मेथड लगाता हूं तो पहला काम होता है कि मैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करूं. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. सेकंड क्या होगा, आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकालिए. ऑपरेटिंग सरप्लस. फिर क्या करना होगा आपको, फिर आपने ऐड करना है
क्या ऐड करना है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम। ऐड करने के बाद क्या निकल के आएगा आपका? आपका निकल के आएगा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एफसी। बहुत बढ़िया। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इसमें ऐड कर देंगे एनएफआईए। एनएफआईए ऐड करने के बाद क्या निकलेगा आपका? इसे ऐड करते ही आपका निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एफसी। चलिए फॉर्मेट हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं। सबसे पहले आपका है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर्मेट में आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं फॉर्मेट में तो आ ही नहीं रहा। भाई जो चीज फॉर्मेट में नहीं आ रही उसे भूल जाना। मिक्स्ड इनकम बिल्कुल लेंगे। कितना है मिक्स्ड इनकम आपका? मिक्स्ड इनकम है आपका 35। लिख लीजिएगा आप 35। जो जो आप लेते जाओ उसमें टिक लगा देना। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आता, फॉर्मेट में आ भी नहीं रहा। ओपनिंग स्टॉक फॉर्मेट में नहीं आ रहा, भूल जाइए। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बिल्कुल आएगा, यहां लिख लेते हैं, टोटली दे रखा है। अगर मैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करूं तो यहां पे तीन चीजें आती हैं आपकी। पहला आपका आता है सैलरी वेजेस इन कैश, फिर आता है आपका परक्विजिट्स या पर्क्स, फिर आपका आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या टोटली दे रखा है, तो इंडिविजुअल अगर आपको दे रखा हो तो भूल जाना, हम लोग इंडिविजुअल नहीं लेंगे। ये मैंने ले लिया, टिक लगा दिया मैंने इसमें। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक है, फॉर्मेट में नहीं आ रहा, भूल जाओ। इंपोर्ट नहीं आ रहा, भूल जाओ। फिर है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके अंदर क्या आता है लिख लेते हैं। इसके अंदर आता है एक आपका रेंट आता है, फिर आपका आता है इंटरेस्ट, फिर आपका आता है रॉयल्टी, फिर आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मैं वर्किंग बना लेता हूं। अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बात करूं तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट में हम लोग तीन चीजें ऐड करते हैं। पहला आता है कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आपका आता है डिविडेंड, फिर आपका आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कॉर्पोरेट सेविंग प्लस रिटेन्ड। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो निकल के आएगा प्रॉफिट। चलिए, रेंट आपको कितना दे रखा है? 75, यहां कॉपी कर लेते हैं, 75 भैया रेंट है। बहुत बढ़िया, टिक भी लगा देते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन कहीं फॉर्मेट में आ रहा है? नहीं आ रहा, भूल जाओ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर्मेट में आ रहा है? नहीं आ रहा, भूल जाओ। इंटरेस्ट बिल्कुल आ रहा है। कितना है भैया इंटरेस्ट आपका? इंटरेस्ट है 25, कॉपी कर देते हैं। चलिए टिक भी लगा देते हैं। एनएफआईए दे रखा है आपको -5। कितना है? -5, लिख लेते हैं -5। एक्सपोर्ट आता है कहीं? नहीं आता, भूल जाओ। प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट टोटली दे रखा है आपको, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब कुछ नहीं लेना आपने, टोटल दे रखा है आपको। प्रॉफिट यहां कॉपी कर दो। रॉयल्टी दे नहीं रखी। कितना निकल के आ जाएगा? आप देखोगे तो यहां कहोगे आप 200 आ गया। 75 25 100 होता है, 100 में 100 जोड़ोगे तो आपका 200 आएगा। सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? आपका टोटल आ गया 485। ठीक है, अब 485 में आप 5 माइनस करोगे, कितना निकल के आएगा? अगर 5 माइनस करूंगा तो निकल के आएगा 480। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सबसे पहले फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और जो जो फॉर्मेट में चीजें आ रही हैं उसे कॉपी करते जाना है। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या करना है ये पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनएनपीएफसी। पहला स्टेप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। चलिए पहले आपने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करना है। फिर क्या करना है आपने? फिर आपने ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। फिर क्या करना है आपने? फिर आपने मिक्स्ड इनकम निकालना है। मिक्स्ड इनकम या कुछ और, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जगह कम है इसलिए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिखिएगा प्लीज। क्या निकल के आएगा आपका? डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एफसी। फिर क्या करना है जी आपने? आपने फाइंड आउट करना है एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है फीफा माइनस फीटा। इसके बाद क्या निकल के आएगा, इसके बाद आपका नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा जो चाहिए मुझे। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग क्या लिखते हैं या लिख लेते हैं, इसमें हम लोग रेंट लिखते हैं एक, इसमें हम लोग इंटरेस्ट लिखते हैं, इसमें हम लोग रॉयल्टी लिखते हैं, इसमें हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट के लिए हमेशा हम अलग से कैलकुलेट भी कर लेते हैं, क्यों करते हैं वो आपको आगे क्वेश्चन में पता लग जाएगा। प्रॉफिट का मतलब होता है कॉर्पोरेट टैक्स, इसका मतलब होता है डिविडेंड, इसका मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट सेविंग प्लस रिटेन अर्निंग। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। पहले पेन का कलर चेंज कर लूं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बिल्कुल है, आपको दे रखा है 200, यहां कॉपी कर लीजिएगा 200 करोड़। ओल्ड एज कंपेंसेशन फॉर्मेट में कहीं भी नहीं आ रहा, भूल जाओ भैया। डिविडेंड बिल्कुल है, डिविडेंड देखो यहां दे रखा है, लिख लो। ऑपरेटिंग सरप्लस बिल्कुल है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है आपका 900। देखो अब ऑपरेटिंग सरप्लस टोटल दे रखा है, इसका मतलब मैं रेंट भी कंसीडर नहीं करूंगा, इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा, रॉयल्टी भी नहीं लूंगा, प्रॉफिट भी नहीं लूंगा, इनमें से कोई भी आइटम नहीं लूंगा। ठीक है, मैंने काट दिया है। वेजेस आपको दे रखा है, कितना है वेजेस 500। आप भी जानते हो यहां पे तीन चीजें आती हैं, पहली चीज आती है वेजेस हो गया, पर्क्स हो गया और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया। तो वेजेस कितना है, वेजेस हम लोग देख लेते हैं। वेजेस आपको दे रखा है इसमें 500, लिख लेते हैं, टिक लगा दीजिएगा। प्रॉफिट आपको दे रखा है, लेकिन क्या लोगे भाई, जब टोटल दे रखा है तो इंडिविजुअल आइटम का सेंस बनता नहीं है। प्रॉफिट आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है, लेकिन जब टोटल दे रखा होगा तो इंडिविजुअल नहीं लेते। चलिए अब यहां पे इंप्लॉयर्स, एक चीज याद रखिएगा, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। इंप्लॉय का मतलब है आपकी सैलरी में से पैसा कट गया जो ओल्ड एज या सोशल सिक्योरिटी में पहुंच गया। भाई अगर आपकी सैलरी में से कोई पैसा कटता है तो क्या वो इनकम है, नहीं भैया। अगर इंप्लॉयर आपको देता है तो इनकम है, बिल्कुल। तो यहां पे इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ले लीजिएगा, मैंने आपसे कहा यहां तीन चीजें लेते हैं। एक होता है इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कितना है इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 50, बहुत बढ़िया, टिक कर दीजिएगा, 550 आ गया। अब एनएफआई आपको दे रखा है, टोटली दे रखा है -10, चलिए यहां लिख लेते हैं हम लोग, -10 है आपका, लिख लीजिएगा, टिक कर देता हूं। डेप्रिसिएशन कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। टोटल करते हैं, चलिए सबसे पहले आपका है 550, 550 में आपने ऐड किया 900, 900 में आपने ऐड किया मिक्स्ड इनकम दैट इज 200, आपका निकल के आया 1650। तो डोमेस्टिक इनकम कितना निकल के आ रहा है 1650, माइनस किया 10, 1640। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेशनल इनकम निकल के आ गई 1640 करोड़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, अगर क्लियर हो, अगर क्लियर होता जाए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। चलिए किसी बंदे को पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे गूगल फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, मैं आपको सारे के सारे पीडीएफ भेज दूंगा। अब यहां पे आपने करना क्या है, यहां पे आपने नेशनल इनकम निकालनी है। सबसे पहला काम, आप एक काम करिए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए। आप पहले लिखोगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मैं कंपेंसेशन वर्ड यूज कर रहा हूं। फिर लिखोगे ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर आप लिखोगे मिक्स्ड इनकम, क्या निकल के आएगा आपका डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। आपने नेशनल इनकम निकालना है, क्या करोगे आप एनएफआईए, क्या निकल के आएगा आपका नेशनल इनकम। अब प्रॉफिट के लिए भी मैं वर्किंग बना लूं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉफिट आपको गिवन तो होता नहीं है। प्रॉफिट में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट का मतलब होता है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कॉर्पोरेट सेविंग प्लस रिटेन अर्निंग, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट,
इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। कंपेंसेशन में हम 3 चीजें लिखते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सैलरी, वेजेस, उसके बाद आएगा पर्क्स, उसके बाद आएगा आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ओल्ड एज बेनिफिट। पर्क्स का मतलब होता है कोई भी चीज आपको काइंड में दे दिया, आपको कार दे दिया, आपको मकान दे दिया, उसे हम लोग पर्क्स बोलते हैं। खाने वाली चॉकलेट मत सोच लेना। चलिए, सबसे पहला काम आप कलर चेंज कर लेते हैं। कर लिया भैया कलर चेंज। अब क्वेश्चन रीड करो और देखते जाते हैं। करंट ट्रांसफर लिखा हुआ है, फॉर्मेट में कहीं आ रहा है? मुझे तो दिख नहीं रहा, आएगा ही नहीं। सैलरी एंड वेजेस है, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा वेजेस एंड सैलरी। कितनी है वेजेस एंड सैलरी? 600। कॉपी कर देते हैं, बहुत बढ़िया। टिक भी कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं आएगा? नहीं आएगा, भूल जाओ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वैसे भी लिखा हुआ है -20। इंडिया की हालत भी सही है, हमारा ट्रेड डेफिसिट ही रहता है, इसलिए आप जा भी, और ज्यादातर हमारा एनएफआई प्रैक्टिकली अगर देखो तो नेगेटिव में ही चलता है, तो यहाँ नेगेटिव भी लिखा हुआ है। रेंट और इंटरेस्ट आपको दे रखा है 160, कॉपी कर दीजिएगा 160। कॉर्पोरेट टैक्स है, कितना है भैया कॉर्पोरेट टैक्स? 40। इसका मतलब प्रॉफिट अलग से नहीं दे रखा होगा। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 280 लिखा हुआ है, यहां कॉपी कर देते हैं 280, लिख लिया। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कितना है भैया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? 60 लिखा हुआ है, कॉपी कर लेते हैं 60। उसके बाद डिविडेंड आपका है 20, लिख लेते हैं। इसका मतलब आप देख सकते हो प्रॉफिट आपका 120 निकल के आ रहा है। प्रॉफिट यहाँ कॉपी कर लेते हैं 120, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। 120 है, डेप्रिसिएशन का यहाँ भी नहीं रहा, भूल जाओ। चलिए अब जरा लिखना शुरू करते हैं, यहाँ कुछ और आ नहीं रहा। इसका मतलब वेजेस एंड सैलरी ही कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, जो आपका 600 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका आ जाएगा 280। चलिए ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया 600। 600 में आपने ऐड किया 280, फिर आपने ऐड किया मिक्स इनकम, वो भी 280 है लकीली। तो आपका निकल के आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। कितनी डोमेस्टिक इनकम निकल के आ रही है आपकी? ये आ रही है 1160, माइनस किया 20, आंसर आ गया 1140। आई होप क्वेश्चन सही है, या नन्ना सा भी दिख रहा है यार? 1140, ठीक है, आंसर सही है। क्लियर? चलिए, समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स को यूज करना, लिख सकते हो हाँ सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करना क्या है, यहां पे आपने निकालना है जीएनपी एमपी। क्या निकालना है? जीएनपी एमपी, ठीक है। जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर हम लोग लिखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है आपका? आता है रेंट, आपका आता है इंटरेस्ट, आपका आता है रॉयल्टी, आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए अलग से वर्किंग भी बना लेते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कॉर्पोरेट सेविंग और रिटेन अर्निंग, ठीक है। फिर आपका आएगा मिक्स्ड इनकम। इसे करने के बाद क्या निकल के आएगा आपका? इसे करने के बाद डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एफसी। आपको निकालना क्या है? जीएनपी एमपी निकालना है। तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। आप लोग जानते ही हो जर्मनी ने नहीं दी मुझे फरारी। चलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है।
सबसे पहले आप जानते हो यार कि आपने एन से डी जी में जाना होगा, क्या करोगे आप देख सकते हो, डेप्रिसिएशन प्लस कर लीजिएगा, प्लस कर लिया डेप्रिसिएशन, ये सही हो गया मेरा। अब आपको डी से एन में जाना हो तो क्या करोगे, ये आप देख सकते हो एन एफ आई ए प्लस कर लीजिएगा, प्लस कर लिया एन एफ आई ए, बहुत बढ़िया, ये भी सही हो गया। अब आपको एफ से एम में जाना है तो इसका मतलब क्या करेंगे आप प्लस कर दीजिएगा एन आई टी, एन आई टी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या निकल के आ जाएगा आपका निकल के आ जाएगा जी एन पी एम पी। चलिए अब पेन चेंज कर लेते हैं कलर और लिखना शुरू करते हैं। आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कितना लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका, अब यहां देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी नेट इनडायरेक्ट होता है आपका। इनडायरेक्ट आपको अलग से दे रखा है 200, मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद है कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, कितना है डेप्रिसिएशन आपका 100 है, ठीक है, ये भी ले लिया। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है यानी एनएफआई है, आप भी जानते हैं इसका मतलब होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा आपको लिखा हुआ है 250, 250 है फीटा, और फीफा है आपका 320, तो कितना हो गया आपका, हो गया 320, इसमें से आपने माइनस किया 250, ये आपका आ गया 70, तो 70 आप प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद आपका रेंट आ रहा है, रेंट कितना है आपका, रेंट अगर देखो 250 आ रहा है। उसके बाद डिविडेंड आपको दे रखा है 220, डिविडेंड ये रहा 220। मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है 120, 120। फिर आपका सेविंग लिखा हुआ है, सेविंग 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 ये रहा, कितना है सेविंग आपका, सेविंग आपका है 200, चलिए ये भी टिक कर दीजिएगा। इंटरेस्ट आपको दे रखा है 100, ये दे रखा है। सब्सिडीज आपको दे रखा है 200, यानी 200 है। अरे यार ना पाया ना खोया, एनआईटी आपका जीरो आ रहा है ना, चलिए ये भी सही हो गया आपका। फिर आपका है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आपको टोटल दे रखा है भैया, कितना है 500, तो यहाँ पे आप टोटल लिख लीजिएगा 500, ओके फाइन। कॉर्पोरेट टैक्स आपको दे रखा है, कितना है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है आपका 400, ओके। अब जरा यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है, यहाँ पे कुछ और तो आ नहीं रहा, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका 200 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 6 7 8 यानी 820 आपका प्रॉफिट आ रहा है, कॉपी कर लीजिएगा 820, बहुत बढ़िया। अब जरा कैलकुलेट करते हैं, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस 250 प्लस 100 प्लस 820, ये आपका आ गया 1170। इसमें आपने ऐड किया 500 प्लस ऐड किया 120, ये निकल के आ रहा है आपका डोमेस्टिक इनकम, निकल के आ रहा है आपका 1790। इसमें आपने 170 ऐड कर दिया, 170 कैसे ऐड किया आपने, आप देख सकते हो 100 है और एनएफआई 170 होगा, आपका निकल के आ जाएगा 1960। तो आपका जो जीएनपी एमपी जो पूछा था वो आपका निकल के आ गया 1960 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स का यूज करिए, लिखिए सर समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन, इसमें निकालना क्या है आपको, नेक्स्ट पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना क्या है, आप देख सकते हो जीएनपी एमपी निकालना है आपको, बहुत बढ़िया। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। सबसे पहला काम फॉर्मेट ड्रॉ करने का है, ठीक है। आप एक काम करिए, सबसे पहले लिखिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर्मेट बना के आप सॉल्व करोगे कभी गलत नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके बाद आपने लिखना है मिक्स्ड इनकम, आपका निकल के आ गया डोमेस्टिक इनकम,
एनडीपी, एफसी। जर्मनी नहीं दी, मुझे फरारी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप लगाएंगे तो देखेंगे एन से अगर जी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा। फिर आपका क्या होगा, एनएफआईए। फिर क्या होगा, एनआईटी। फिर क्या होगा, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एनएनपी, एफसी। ठीक है। और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में चलो वो देख लेंगे बाद में। आपका रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, रॉयल्टी आता है, प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट के लिए हम लोग लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, इनको कंसिडर करके आपका आता है प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है आपका कॉर्पोरेट सेविंग और रिटेन अर्निंग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज स्ट्रेट अवे आपको दे रखा है, पेन चेंज कर ले रहा हूं। ये आपको दे रखा है 2000, मैंने यहाँ कॉपी कर लिया 2000, बहुत बढ़िया, टिक भी मार दिया। इंटरेस्ट आपको दे रखा है 500, मैंने 500 डाल दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद रेंट आपको दे रखा है 700, मैंने रेंट भी लिख लिया 700, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट आपको दे रखा है 800, यहाँ लिख लिया। टोटल दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ कॉपी भी कर लिया, बहुत बढ़िया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जब कंपेंसेशन टोटल दे रखा है तो इसके अंदर जो जो चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं। एक आता है वेजेस सैलरी इन कैश, फिर आता है परक्विसिट्स, फिर आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल दे रखा है, इंडिविजुअल लेने का सेंस बनता नहीं है, इग्नोर कर रहा हूं। उसके बाद आपका आ रहा है डिविडेंड, डिविडेंड में लूंगा नहीं। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट दे रखा है, डिविडेंड कंसिडर करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल टोटल आपको प्रॉफिट दे रखा है, इंडिविजुअल आने का सेंस बनता नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन दे रखा है। कंपेंसेशन का मतलब डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन कितना है 100, कॉपी कर लीजिए आप, बहुत बढ़िया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा हुआ है आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा हुआ है आपका, कितना है आपका 250, आप यहां कॉपी कर दीजिएगा 250। नेट एक्सपोर्ट कहीं नहीं आएगा। एक चीज याद रखिएगा, हमें एनएफआईए चाहिए होता है अगर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम चाहिए। अगर आपका नेट फैक्टर इनकम 2 है तो आप फ्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे प्लस है उसको आप माइनस कर दीजिएगा, अगर माइनस में गिवन हो तो प्लस कर दीजिएगा। हमें क्या चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें चाहिए एनएफआईए। यहाँ पे क्या है, एनएफटीए। अगर आपको यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है, नेट फैक्टर इनकम 2 नहीं चाहिए। अगर 2 को फ्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी अमाउंट दे रखा है उसका साइन चेंज कर दीजिएगा। मुझे यहाँ पे फ्रॉम में कन्वर्ट करना है, साइन है प्लस, तो मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा, तो इसे क्या कर दूंगा, निगेटिव कर दूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे चाहिए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे 2 गिवन है। 2 को फ्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको अमाउंट दे रखा है उस अमाउंट में आप साइन चेंज कर दीजिएगा। प्लस में दे रखा है तो माइनस कर लीजिएगा, माइनस में दे रखा हो तो प्लस में कर दीजिएगा। यहां बताइए किस में है, या प्लस में गिवन है तो क्या करूंगा, माइनस में कर दूंगा। आप देख सकते हो मैंने माइनस कर लिया। मिक्स्ड इनकम दे रखा है, कॉपी कर लीजिएगा, 1500 हो गया। टोटल लेते हैं, अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं क्या दे रखा है हम लोगों को। ऑपरेटिंग सरप्लस देख रहा हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस का टोटल आ रहा है आपका 2000, कॉपी कर लिया मैंने। 2000 में आप 2000 जोड़िएगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, उसमें आप 1500 जोड़ दीजिएगा। डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगा आपका 5500। डेप्रिसिएशन, एनएफआई, इन सबका अगर इफेक्ट लोगे तो कितना आएगा देखते हैं, 5500 है। इसमें आप एनएफआई तो माइनस ही कर रहे हो, प्लस कर रहे हो आप 350, कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ रहा है 5700। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आप यहां भी देख सकते हो, बड़ा अच्छा सा लगता है जब आंसर टैली हो रहा होता है। क्वेश्चन टैलीड है आपका, अगर समझ में आ रहा हो लाइक कर देना। हाँ सर अच्छी तरह समझ में आ रहा है, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, अगर आप ढंग से देखोगे इस क्वेश्चन में मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। क्या निकालना है आप देख सकते हो यहाँ पे, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। अब एक चीज याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए हम लोग दो तरीके अपना सकते हैं। पहला क्या हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। इन चारों चीजों को ऐड कर दो, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर ये चारों चीजें नहीं दे रखी तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसे निकालने के लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, डोमेस्टिक इनकम। दे रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी हो तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करिएगा और डोमेस्टिक इनकम में से आप कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम माइनस कर दीजिएगा। इन दोनों चीजों को माइनस करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। तो याद रख लीजिएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के दो तरीके होते हैं। हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अप्लाई करेंगे कि भाई हम लोगों को ये वाला तरीका अप्लाई करना है या फिर आपका समीशन ऑफ रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और रॉयल्टी इसको अप्लाई करना है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस में जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स नहीं दे रखे। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब हुआ कि मुझे सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ेगी और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब डोमेस्टिक इनकम तो मुझे यहाँ दे नहीं रखी, डोमेस्टिक इनकम निकालूंगा कैसे। आप यहाँ पे देखो यार, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हमें याद होगा कि हम लोगों ने अभी पहले किया था वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड किया था, वैल्यू एडेड मेथड। और हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड में देखा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तो आपका निकल के आ गया जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी में आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगी और माइनस करोगे आप एनआईटी, तो निकल के आ जाएगा आपका डोमेस्टिक इनकम। मुझे डोमेस्टिक इनकम चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो मुझे डोमेस्टिक इनकम की जरूरत पड़ेगी। अब डोमेस्टिक इनकम में क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मैं माइनस करूंगा मिक्स्ड इनकम। इसे माइनस करने के बाद मेरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये मुझे अप्लाई करना है यहां पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं और वैल्यू पुट करना शुरू कर देता हूं। हालांकि फॉर्मेट गिवन है इसमें, चलिए लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है आपको 800, कॉपी कर लेते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको 200 दे रखा है, इसका मतलब जीडीपी एमपी कितना निकल के आएगा 600, कॉपी कर लीजिए आप, बहुत बढ़िया। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको दे रखा है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दे रखा है आपको 200 दे रखा है, माइनस ही करना है, इसे भी टिक कर दीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखा है, आप भी जानते हैं एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 30, टिक कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन गिवन है आपको कितना है 20 का, क्या करना है, माइनस करना है, बहुत बढ़िया। सब्सिडी दे रखा है कितना है 50, कितना आ रहा है -20 आ रहा है। आप भी जानते हो माइनस माइनस प्लस होता है आपका, तो इसे प्लस कर लीजिएगा। मिक्स्ड इनकम दे रखा है 100, आपने 100 लिख दिया, क्या करना है, ये भी माइनस होना है, माइनस करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, 220 तो वैसे ही माइनस हो गया, ये आपका आ गया 600। 600 में से क्या करूंगा मैं 200 और 100 माइनस करूंगा, यानी आ जाएगा 300। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, यहां पे हम लोग आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जीडीपी एमपी निकाल लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिक इनकम निकाल लिया। भाई आपने क्या किया, पहले जीडीपी एमपी निकाला, फिर आपने क्या निकाला,
फिर आपने डोमेस्टिक इनकम निकाला, फिर आप क्या करोगे, आप देख सकते हो, फिर मैंने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माइनस किया, फिर मैंने मिक्स्ड इनकम माइनस किया, फिर क्या निकल के आ गया, जो मुझे चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। समझ में आ गया? लाइक कर देने का। हाँ सर समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स को यूज करना, आपके लिए कमेंट बॉक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखते हैं, इसे कौन करेगा। इसमें क्या करना है भैया, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। सबसे पहला काम फॉर्मेट ड्रॉ करने का है। पर्टिकुलर्स आपको दे रखा है रुपीज इन करोड़, छोटे मोटे तो काम करते ही नहीं है भैया। ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने आपसे क्या कहा था कि आप सॉल्व करेंगे कैसे, या तो आपको कंटेंट दे रखे हो, आप देख सकते हो कंटेंट नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे गिवन क्या है, आप देख सकते हो जीडीपी एमपी गिवन है। ओके, जीडीपी एमपी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डोमेस्टिक इनकम निकालोगे। कैसे निकालोगे, जर्मनी ने नहीं दी, मुझे फरारी लगाओ। डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनआईटी माइनस करो। एनआईटी का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बहुत बढ़िया, आपका निकल के आ गया डोमेस्टिक इनकम। अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माइनस, और क्या माइनस करोगे, मिक्स्ड इनकम माइनस अगर गिवन है तो। फिर क्या होगा, अरे फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा भैया। अब देखो यहां मिक्स्ड इनकम दे नहीं रखा, फिर आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए अब क्या करना है, सर पेन चेंज कर लो। कर लिया भाई, कर लिया, टेंशन नहीं लेने का। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 200, ये लिख लिया, टिक भी मार देने का। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां ऊपर लिख लिया 200, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन लिखा तो नहीं हुआ, अरे भैया मेरे, कंपेंसेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई, डेप्रिसिएशन होता है। कितनी बार समझाना पड़ेगा। सब्सिडीज है 50, चलिए माइनस कर दीजिएगा 50, ये आ गया 150। चलिए बढ़िया, माइनस ही करना वैसे भी। अब ग्रॉस डोमेस्टिक आपको दे रखा था 600, देखते हैं इफेक्ट क्या आ रहा है। आपका 600 है, 600 में आपने माइनस किया 250, निकल के आ गया डोमेस्टिक इनकम आपका 350, माइनस किया आपने कंपेंसेशन, ये तो दे ही नहीं रखा, आंसर आ गया आपका 150, सॉल्व हो गया। आप कहोगे सर 15 लिखा है, भाई यार जीरो रह गया भाई छपने से, टेंशन ना लो। चलिए क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है, लाइक करने का, कमेंट बॉक्स को यूज करने का, ठीक है, कर ही लेना भाई। Dear subscribers, if you like the video, spread the video as much as you can. During this pandemic time period is appeal, stay home, stay safe, and above all, don't forget to wear mask. Om Shanti.